So, very good morning, children. Welcome back to part number 2 video of chapter 1, class 10th science. So, last video, part 1 video, we discussed about balancing chemical equations and the types of chemical reaction, and under which we discussed about two types of chemical reaction. One was combination reaction, addition of different compounds or elements into a single compound, and then we learned about the decomposition reaction. Decomposition reaction is actually splitting of one compound into two or more compounds or elements. So such a reaction was decomposition reaction, and under which again we learned few types of decomposition reaction. And now today we are going to learn the third type of reaction, that is displacement reaction. Displacement reaction, and the word itself says something is being displaced. So I'll write one example over here for a displacement reaction. Copper sulfate solution आप लेंगे, aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution, and then aqueous solution का मतलब ये होता है कि उसको आप soluble करो पानी में, वाटर में मिला अच्छे से, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होती है ना. सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं आपके घर पे जो होता है ना, कॉमन सॉल्ट, लेकिन उसको पानी में घुलाने के बाद तो पानी जैसा ही दिखता है. ऐसा नहीं कि वो एकदम व्हाइट कलर का पानी हो जाती है, नो, है ना, वो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल बैठ जाता है. सो देन इट बिकम्स व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो इसी तरह कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो दिखने में तो पानी जैसा. एंड जिंक zinc reacts with copper sulfate solution to form zinc sulfate plus copper. So this is a displacement reaction because zinc has displaced what? Copper. और copper sulfate में copper को एक तरह की लात मार के बुला दिया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया. So that is a type of reaction here which is called displacement reaction. So what is displacement reaction? So one element takes the place of another element in a compound. A reaction in which one element takes the place of another element. So that is called a displacement reaction. And this is solid actually anyway, and this is again aqueous solution, and this is solid. And this zinc sulfate is colorless here. And copper का color को आपको पता है already. Copper is a little bit red brown color, and what about zinc? Zinc is actually a little bit silvery, silvery white color. तो एक silvery white color की है zinc, और copper sulfate solution is blue color, है ना. ये लैब में एक एक्सपेरिमेंट भी आपके जिसमें आप हम लोग ये करेंगे. ब्लू कलर का सॉल्यूशन है. So now the question is, क्या हर एक इस तरह की, जैसे जिंक एक मेटल है, तो हर एक मेटल इस तरह की एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडरगो करते हैं. So for that you will have to learn something called reactivity series. ये आपका चैप्टर 3 metals and non-metals में, and a page number, I think the page number is 54 or something like that. And in that page it is written, I will show you page number 54, 45, page number 45, and in that there is a reactivity series of metals given. Okay, so it is found that more reactive metal displaces a less reactive metal. तो यहां से आप बता सकते हैं कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है. ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द रिएक्टिविटी सीरीज. आप इसको लर्न कर सकते हैं, और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह बच्चों को बोलता हूं कि आप इस तरह लर्न कीजिए. KNC
K and C, I will write it somewhere here there can properly see. Okay, K and C mazhab PC ha. So this is a short form, K and C mazhab PC ha. So K is for potassium and N is इसका पूरा abbreviation नहीं आया अभी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, copper, and it is mercury, silver and gold. So K and C mazhab PC ha, और इसका actual symbols ये है, K Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, copper, this is silver, Hg is silver, mercury, and Ag is silver, and Au or that is gold. So ये सब सिंबल anyway आपने 9th क्लास में सीखा है. I think you can see this aura, silver you can see, okay. और इसके बाद gold, okay. So ये सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, उससे कम रिएक्टिव जिंक, और जिंक से भी कम रिएक्टिव लेड, आयरन, आयरन से भी कम लेड, लेड से भी कम है कॉपर. इसका मतलब कॉपर सल्फेट का अगर आप सॉल्यूशन लेंगे विच इज अ ब्लू सॉल्यूशन, और उसमें आप लेड लाएंगे तो भी लेड कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज़ लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन भी डिस्प्लेस कर देगा, जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम भी डिस्प्लेस करेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आराम से किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है ना. सो समटाइम्स ना इक्वेशन ऐसा आता है कि जो पॉसिबल ही नहीं है, वो आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कॉपर सल्फेट प्लस गोल्ड, है ना, नहीं तो ऐसे देंगे कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर करेंगे तो सच ए रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन. तो इन ब्रीफ व्हाट आई मेंट टू से इज दिस, जो मेटल मोर रिएक्टिव है वो नॉर्मली लेस रिएक्टिव वाला मेटल को लात मार के बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. सो सच ए रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है. कॉपर सल्फेट आप खुद भी बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, क्योंकि कॉपर सल्फेट यहाँ, कॉपर यहाँ पे मैग्नीशियम है, सो मैग्नीशियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से भी काफी ज्यादा रिएक्टिव. सो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, और कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इट विल बी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. सो ये इसका जो रिएक्शन है आपकी बुक में एक एक्टिविटी के रूप में दे रखा है कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन लेंगे आप, और उसमें एक नेल, फ्रेश नेल डालेंगे, एकदम पुराना जंग पकड़ा हुआ नेल नहीं. तो फ्रेश नेल का खूबी है कि उसकी जो कलर है लगभग ग्रे रहता है, ग्रे कलर की रहती है आयरन. सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन है, दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज अगेन एक्वस एंड दिस इज सॉलिड, है ना. और मतलब इसमें पानी है, वाटर H2O तो है, अपन यहाँ पे शो नहीं कर. सो ब्लू कलर है और ग्रे कलर है, एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन सी दैट द आयरन ग्रे कलर, जो आयरन नेल कील जो आपने डाला है वो थोड़ा उसमें कोटिंग आ गया, मतलब कॉपर का कोटिंग आ गया, इट बिकम्स ऑलमोस्ट ब्राउन रेड कलर, तो क्योंकि कॉपर का कोटिंग आ गया उसमें. और ये जो सॉल्यूशन जो है, जो हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था, वो इट बिकम्स लाइट ग्रीन सॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन सॉल्यूशन जो है वो आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. और कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, और मैग्नीशियम सल्फेट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन. तो पहले ब्लू था, तो धीरे धीरे उसका ब्लू क्या हो गया, फेड होते जाएगा. और मैग्नीशियम जो है इट इज सिल्वरी व्हाइट कलर की होती है मैग्नीशियम, और ये धीरे धीरे क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होते जाएगा, बिकॉज कॉपर उसके ऊपर
डिपॉजिट हो रहा है. सो दैट इज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हियर. Or you can even go for more displacement reaction. For example, silver nitrate. Okay, silver nitrate plus. So I'm going to write it here. Silver nitrate, AgNO3. Silver nitrate plus copper. अब सवाल ये कि सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है क्या? कर सकता है. You can see this is silver, है ना? और सिल्वर को कॉपर बड़े आराम से डिस्प्लेस करते हैं क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर के ऊपर है. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो सिल्वर को लात मार के निकाल देंगे तो इट विल बिकम व्हाट? कॉपर नाइट्रेट प्लस कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. और कॉपर नाइट्रेट, कॉपर के यहां पे वैलेंसी 2 आ रहा है तो इसलिए NO3 ट्वाइस आ गया और आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे 2 डाल के Ag2 डाल के बैलेंस कर सकते हैं. Can balance it like this. So there can be more reactions like copper chloride. Copper chloride is almost green in color solution. और इसके साथ में आपकी बुक में एक रिएक्शन दे रखा है copper chloride plus lead, which can give what? Lead chloride plus copper. So this lead chloride is a colorless aqua solution है, colorless aqua solution. कॉपर नाइट्रेट जो है, कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू कलर की सॉल्यूशन है. कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का होता है, कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये जो सिल्वर नाइट्रेट है दिस इज ए कलरलेस सॉल्यूशन. सो आप इसको एक्वा सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है और यहाँ पे एक और एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है और एक और सॉलिड बन रहा है. सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन ऑल दिस इक्वेशंस. वन इज एक्वा सॉल्यूशन एंड अनदर इज अ सॉलिड रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी एक एक्वा सॉल्यूशन होगी और एक सॉलिड होगा. सो जो भी एक्वा सॉल्यूशन है उसी का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? एक्वा सॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन में जो मेटल है वो फ्री हो जाएगी. सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो देयर आर मोर रिएक्शंस, एटलीस्ट 4-5 रिएक्शंस यू मस्ट लर्न. और इसमें जो कलर चेंज जो मैंने बताया ये भी आपको लर्न करना है. जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है और जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस है. एग्जाम में कई बार ये वन वर्ड में पूछते हैं. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है और मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये भी कलरलेस है. और कॉपर सल्फेट यहाँ पे ब्लू कलर है, लेकिन आयरन सल्फेट जो है ये ग्रीन इन कलर. और ये सिल्वर नाइट्रेट तो कलरलेस है, लेकिन जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस करता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है व्हिच इज ब्लू इन कलर, राइट. और कॉपर क्लोराइड जो है ये एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर क्लोराइड का, और ये लेड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये लेड क्लोराइड बनता है. लेड क्लोराइड ऑलमोस्ट कलरलेस सॉल्यूशन है. कॉपर क्लोराइड भी लगभग ग्रीन सॉल्यूशन है इसकी, है ना. कॉपर नाइट्रेट तो ब्लू सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट भी ब्लू सॉल्यूशन है, लेकिन कॉपर क्लोराइड जो है इट इज अ ग्रीन सॉल्यूशन. एंड व्हेन रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड रिएक्ट विद लेड इट गिव्स, लेड का कलर क्या है? इट इज रिच ग्रे ओनली, है ना. लेड, जिंक, है ना, और मैग्नीशियम, ये सब. मैग्नीशियम तो फिर भी सिल्वरी व्हाइट है. आयरन, तो ये सारे ऑलमोस्ट ग्रे है, लेकिन ग्रे में थोड़ा सा कोई जो ब्लूइश ग्रे होता है. जैसे लेड जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश ग्रे है. और लेड क्लोराइड जो है ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है. सो लेड क्लोराइड कलरलेस है, जिंक सल्फेट कलरलेस है, मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन है, और ये सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन है. लेकिन आयरन सल्फेट जो है ग्रीन कलर का, और यानी फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, and copper sulfate is blue in color, copper nitrate is blue in color, and copper chloride is green in color. और ये आपकी बुक में जो एक्टिविटीज दे रखा है उसमें जो कलर चेंज है वो आपको मस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लर्न करना है. क्योंकि साइंस में अगर आपको मार्क्स करना है तो सिर्फ पूरा कहानी पढ़ने से नहीं होगा. यू हैव टू लर्न एवरी डिटेल, उसमें कलर क्या चेंज हो रहा है, उसके कलर क्या है. वन वर्ड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है. So this reactivity series if you learn then you can easily identify reaction possible है या नहीं,
है ना, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो ही डिस्प्लेस कर सकता है, और जो कम रिएक्टिव मेटल है वही डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब वही बाहर निकल सकता है। सो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। मतलब आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस। सो वही चीज डिस्प्लेस कर सकता है जो ज्यादा रिएक्टिव। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट है ना एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। सो इफ एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट ग्रुप है, SO4 2- है तो 2 इधर आ जाएगा, सोडियम का 1 वैलेंस ही उधर जाएगा, और इसको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि इसके नीचे का जो नंबर्स है वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो फिर कोई और कंपाउंड बन जाएगी। सो ये बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इट मेक्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और इसमें सोडियम क्लोराइड का तो एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन बेरियम सल्फेट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट PBD। तो इसीलिए अधिकतर ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है। दो लिक्विड को है ना, ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का जैसा बिल्कुल दिखता है। सो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को है ना 2 टेस्ट ट्यूब में देके और उसको या एक सिंगल टेस्ट ट्यूब में करेंगे, व्हेन इट मिक्सेस यू कैन डायरेक्टली सी समथिंग व्हाइट, है ना, दोनों में कोई व्हाइट चीज था ही नहीं, लेकिन इसको करेंगे तो एक समथिंग व्हाइट इज फॉर्म, बेरियम सल्फेट। और व्हाइट इसलिए क्योंकि बेरियम सल्फेट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो बेरियम सल्फेट सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, इसीलिए वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सो यहां पर यू कैन सी द सल्फेट ग्रुप एंड द क्लोरीन, दे एक्सचेंज्ड। सो क्लोरीन की जगह सल्फेट आ गया, सल्फेट की जगह क्लोरीन आ गया। सो दैट्स व्हाट something called double displacement reaction, exchange of ion between the reactants. So a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction. So I can write even more examples of this double displacement reaction. Copper sulfate solution के साथ भी आप बेरियम क्लोराइड का कर सकते हैं, है ना, और कॉपर का 2 वैलेंसी है, सल्फर का भी 2 वैलेंसी है, तो फिर 2 अपन को सेम वैलेंसी है तो अपन लिखते ही नहीं है कॉपर, और मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उनका एक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड वहां पे एक रिश्ता वहां पे बन जाता है, कॉपर सल्फेट बिकम्स ए कंपाउंड नाउ। सो कॉपर सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ये सब मैं आपको है ना समझने लायक एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। वैसे तो आपको इसके जो फॉर्मूलाज है ये बार बार आप इसको मतलब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा कि हाँ कॉपर सल्फेट को CuSO4 ही लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 ही लिखते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये BaCl2 ही क्यों है, BaCl3 क्यों नहीं है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 ट्वाइस क्यों नहीं है, वो तो उसके वैलेंसी बताएंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था। वो वैलेंसी अगर आपको याद है, और मैंने लिखवाया था सारे वैलेंसीज, अगर वैलेंसीज याद है तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी भी एक्वस सॉल्यूशन है, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, बेरियम सल्फेट अगेन प्लस copper chloride, right, and barium sulfate and copper chloride. तो copper chloride यहाँ पर जो copper का जो chloride है CuCl2 बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं Cl2, Cl का 1 है, copper का 1 भी है 2 भी है, लेकिन यहाँ पे 2 वाला वैलेंसी यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी 2 वाला वैलेंसी यूज हो रहा है। और यहाँ जो प्रेसिपिटेट आएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, और आप जानते हैं ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगी, कॉपर क्लोराइड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट हो रहा है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट PbNO3, और नाइट्रेट का जो वैलेंसी -1 है, ये रेडिकल, इसलिए लेड का 2 है तो 2 आएगा यहाँ पे, और प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड इसको बैलेंस करने के लिए 2 देगा वैसे तो, और ये पोटेशियम नाइट्रेट बनेंगे KNO3 प्लस लेड आयोडाइड बनेगा PbI2। सो यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है
दैट इज एन येलो प्रेसिपिटेट, और बाकी सब एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है इन सब का। और इसका बैलेंस करने के लिए यहाँ पे I2 आ गया, यहाँ पे I को 2 कर सकते हैं, और NO3 2 आ गया तो इसको भी 2 कर सकते हैं। तो NO3 2 पहले से यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। सो दिस इज बैलेंस नाउ, है ना। पोटेशियम 2 आ गया, NO3 भी वहां पे 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 है, लेड 1 है, लेड 1 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है। सो you can even find more examples. One more example I will give you of double displacement reaction, NaOH plus HCl. तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे एसिड्स एंड बेसिस करके चैप्टर 2 है, और हमारा अगला टॉपिक वही है जो सिलेबस मैंने भेजा है, मतलब स्कूल की तरफ से जो आपको मिला है सिलेबस, दैट इज द सेकेंड चैप्टर आई विल बी टीचिंग यू द नेक्स्ट, NaOH plus HCl. Sodium hydroxide is a base and HCl hydrochloric acid is an acid. ये दोनों की नेचर बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट नेचर है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट बिकम्स वाटर, और ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन ही है एक्चुअली, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो इट्स अ सॉल्यूशन, है ना। और वैसे भी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ना। NaOH भी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकता है क्योंकि उसमें वाटर डालने से वो, है ना, डाइल्यूट हो जाती है। सो डाइल्यूशन का मेथड नहीं बता रहा मैं, बट वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वो डाइल्यूट होगी। सो एनीवे बोथ आर एक्वस सॉल्यूशन ओनली, एंड व्हेन दे रिएक्ट यू विल गेट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. So this is also a double displacement reaction. Sodium has exchanged ion, OH और Cl exchange हो गया है, OH की जगह Cl आ गया, Cl की जगह OH, तो ये OH उधर चला जाएगा तो 2H हो गया H2. But this is not a precipitation reaction, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है, हालांकि यहाँ पर भी है ना बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा था, लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहे थे, बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा था, और ये सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा था, है ना। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल क्लियर कट है, कलरलेस है, लेकिन उसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बेरियम सल्फेट वहां पे उसके अंदर आपको तैरता हुआ मिलेगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है पानी में इनसॉल्युबल है, इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर. But here the sodium chloride is not insoluble in water, it is soluble in water. H2O के अंदर वो dissolve हो जाती है और इसीलिए वो precipitate form नहीं करता. So this is not a precipitation reaction, even though it is a double displacement reaction. Generally double displacement reactions are actually precipitation reactions, but this is not a precipitation reaction. This is actually called as neutralization reaction. This is actually called as neutralization reaction. तो एक हेडिंग के रूप में भी है, एक अलग टॉपिक के रूप में आप इसको लर्न कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो ये तीन तो प्रेसिपिटेशन हो गया और ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया, लेकिन ये सब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम कैसे आया इसका? प्रेसिपिटेशन को तो चलो कोई बात नहीं, वो में प्रेसिपिटेट बन रहा था, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन इसलिए है क्योंकि ये जो एसिड है इसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है कौन? एल्कली या बेस NaOH. इसी तरह NaOH का प्रॉपर्टी को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? HCl. ये NaOH और HCl ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आप हैंडल नहीं कर सकता. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके हाथ में गिरेंगे तो वहां पर बिल्कुल छेद हो जाएगी, मतलब इट विल बर्न योर बॉडी, इट विल कंज्यूम योर बॉडी. और NaOH भी ऐसा है, कोरोसिव इन नेचर है ना. ह्यूमन बॉडी में वो गिरेंगे तो वहां पर पूरा बर्न हो जाएंगे. लेकिन व्हाट अबाउट सोडियम क्लोराइड? कोई बर्न नहीं करता. हम खाने में नमक बिना तो खाना खा ही नहीं सकता, वाटर बिना हम जी नहीं सकता. ये दोनों ही बिल्कुल न्यूट्रल चीज है, ये हमारे बॉडी के लिए कोई हानिकारक चीज नहीं है. बट ये दोनों हाईली कोरोसिव इन नेचर है ना. एसिड तो तेजाब बोलते हैं हिंदी में,
हाईली कोरोसिव, और इक्वली कोरोसिव है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्योर फॉर्म में, हाईली कोरोसिव। ओके, उसका सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, सोडियम का पीसेस आता है ना, सोडियम का पीसेस अभी केमिकल शॉप्स में केमिक्स मतलब मिलता है कि मुझे पता नहीं, बट सोडियम का जो पीसेस है, यू नो before 5-6 years, you know, when some of my students brought it from the chemist shop, and उसके पीसेस को आप पकड़ने के लिए आपको ग्लव्स पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो सोडियम जो है वाटर कंटेंट हमारी एयर में ऑलरेडी है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं। सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली कोरोसिव इन नेचर है, तो आप उसको हाथ से पकड़ भी नहीं सकता, है ना। और सोडियम इतना रिएक्टिविटी सीरीज में भी बहुत ऊपर है सोडियम, तो हाईली रिएक्टिव है। उसको पानी में डालेंगे तो पानी में कोई चीज डालेंगे तो जलता है क्या कभी, लेकिन सोडियम ऐसा चीज है कि पानी में डालेंगे, हमने बाल्टी में डाला उसको, बाल्टी में पानी रखे, एंड इट वाज जस्ट फ्लाइंग लाइक एन एरोप्लेन या लाइक ए बोट इन द वाटर, एंड इट वाज बर्निंग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड NaOH. So whatever it is, so that is simply an example I give you कि how much corrosive NaOH is, how much corrosive HCl is definitely, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बिल्कुल एक न्यूट्रल चीज है ना, ये दोनों ही कोई corrosive नहीं है, बिल्कुल एक न्यूट्रल चीज बनती है। सो ऐसा बोलता है दिस इज अ टॉप अल्कली या टॉप बेस एंड दिस इज अ टॉप एसिड, है ना। कोई ज्यादा तेज एसिड भी होता है, कम तेज भी होता है, ज्यादा तेज अल्कली भी होता है, कम तेज भी होता है, और उसके बारे में डिटेल में है ना पीएच स्केल वगैरह आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, और जिसका पीएच हाई लो वगैरह। तो व्हाटएवर इट इज, नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट बोथ हैव हाई कोरोसिव नेचर, लेकिन जब ये इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो फिर जो बन रहा है वो बिल्कुल न्यूट्रल चीजें हैं, वो कोरोसिव इन नेचर नहीं है। So that's all about the 4 types of reaction, and there is a 5th type, and this is not actually the 5th type. ये जो 4 types है इनको भी आप इसमें ले सकते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी है ना। 2 types of all the reactions can be considered like 2 types of reaction, that is oxidation reaction and reduction reaction. यानी दुनिया में जितने भी रिएक्शंस हो रहा है उनको आप इस 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। जैसे एक डिफरेंट कैटेगरी आप कर सकते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। वो किस बेसिस पे है, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी अगर वो ले रहा है देन वो रिएक्शन के लिए देन दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शन कैन कम अंडर दैट कैटेगरी, है ना। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इसी तरह एक 5th कैटेगरी तो है, फिर भी ये एक अलग कैटेगरी है, इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसका डिटेल्ड फॉर्म आपकी क्लास 10th लेवल में नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डिटेल फॉर्म कुछ और है, 11th क्लास और 12th क्लास में सिखाया जाता है। सो इसका डिटेल फॉर्म की जगह यहां पर एक सिंपल फॉर्मेट दे रखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। So addition of oxygen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. और उल्टा आप ये भी बोल सकते हैं कि removal of hydrogen is oxidation and removal of oxygen is reduction. So normally हम ऑक्सीजन के हिसाब से बोलेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ऑक्सीजन अगर कोई रिएक्शन में ऐड हो रहा है, कोई कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देन इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अगर कोई कंपाउंड के साथ में ऐसा हो रहा है कि उसका ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रहा है, रिमूव किया जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और इन द सेम वे अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन कोई कंपाउंड, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कोई कंपाउंड में, देन दिस इज दैट प्रोसेस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी कंपाउंड में अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है देन दैट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अधिकतर चीजों में क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, और एक साथ होता है तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये एक साथ हो रहा है तो वी कॉल इट एज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इट हैपेंस साइमल्टेनियसली। और उसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का,
आपकी बुक में भी दे रखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, then it reacts, it becomes what? Copper plus water. और ये रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने हाइड्रोजन का प्लेस नहीं बताया है ना, के एन सी मजहब पी सी हाँ में पी और सी, पी सी जो बोलते हैं पी सी, पी और सी के बीच में एक्चुअली हाइड्रोजन, पी इज एक्चुअली पी बी एंड सी इज एक्चुअली कॉपर सी यू है ना, उसका फुल फॉर्म। वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं के एन सी मजहब पी सी हाँ बोला, लेकिन उसमें मैंने फिर बाद में सारे सिंपल्स ऐड करा है, तो आप उसको बाहर करेंगे तो आपको समझ में आएगा पी पी बी लड और कॉपर, इनके बीच में है हाइड्रोजन का प्लेस है ना, आप अपनी बुक में देख सकते हैं और पेज नंबर 45 में, तो हाइड्रोजन का प्लेस वहां पे है। तो हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, सो हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस कॉपर हियर है ना, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, बट आई विल टेल यू दिस एज ए रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड बिकम्स व्हाट? कॉपर, क्यों? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इज अ रिएक्टेंट, उसके साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? वाटर, addition of oxygen, so addition of oxygen is here oxidation, so hydrogen undergoes oxidation and copper oxide undergoes reduction. Okay, the substance oxidized is hydrogen and the substance reduced is copper oxide. अब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज कराने वाला कौन है? सो जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका नेक्स्ट पार्टनर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बन रहा है भाई? वाटर बन रहा है, so hydrogen becomes water H2O, so hydrogen is oxidized, but who is oxidizing hydrogen? Copper oxide is oxidizing, so oxidizing agent is copper oxide. Or in the same way here copper oxide is being reduced to copper under this reaction, then copper oxide तो reduce हो रहा है, तो उसको कराने वाला हाइड्रोजन है, so hydrogen is the reducing agent here. So एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सो यू हैव टू मेंशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस, लाइक हाइड्रोजन सल्फेट गैस रिएक्ट विद क्लोरीन, दिस इज आल्सो गैस, सो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो इट बिकम्स सल्फर and hydrogen chloride. So you can see hydrogen sulfate is oxidized to sulfur. कैसे? Removal of hydrogen. Removal of hydrogen क्या है भाई? Oxidation. Remove addition of oxygen, oxidation है, तो addition of hydrogen oxidation नहीं, addition of hydrogen reduction होगी. So addition, removal of hydrogen, then उसका opposite thing जो है वो oxidation. So removal of hydrogen. So H2S hydrogen sulfide gas is oxidized to sulfur here. In the same way, chlorine is reduced to hydrogen chloride. क्यों? क्योंकि क्लोरीन में एक और बंदा आ गया, वो कौन है? हाइड्रोजन ऐड हो गया. So क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन ऐड होना, addition of hydrogen is actually reduction reaction. सो क्लोरीन के साथ रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दिस इज अगेन ए रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. सो आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर. So can balance the equation here. Chlorine is 4, Cl2, Cl2, so here you can write 4, and oxygen 2, so you can write here 2. So 2H2O, so 4 hydrogen, 4 chlorine, 2 oxygen, 1 manganese. Okay, this is now balanced equation. So what is happening here?
manganese dioxide is converted into manganese chloride. So what is happening? Removal of oxygen, that is a reduction reaction. And what about the hydrogen chloride here? Hydrogen chloride, there is a removal of hydrogen, then that is an oxidation reaction. Removal of hydrogen is oxidation, addition of hydrogen is reduction. So हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पॉल्स में मान लो। ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन ऐड होना रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन रिमूव होना रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। सो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, देन देयर इज ऑक्सीडेशन। सो HCl is oxidized to chlorine and manganese oxide is reduced to manganese chloride actually. So that's all about the oxidation and reduction. लेकिन आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो लेवल है इसको पहचानने का, ये 11th 12th में ये नहीं है। इट इज अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट गेन हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट गेन हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो लेवल है ये बिल्कुल अलग है हायर क्लासेस में। और अभी आपको बिल्कुल एक सिंपल लेवल बताया गया है, वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो मे बी आपको उतना ही सिखा रहा हूं, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। Effects of oxidation reaction. Number 1 is corrosion. So ये corrosion जो टॉपिक है ये चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में थोड़ा ज्यादा डिटेल में दे रखा है, लेकिन इस साल के सिलेबस से corrosion जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। लेकिन इस चैप्टर में उसको मेंशन नहीं करा कि उसको हटा दिया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम एक वैसे भी इस चैप्टर में डिटेल में नहीं है, केमिकल रिएक्शंस नहीं है। सो और व्हाट इज कोरोजन इज गिवन। कोरोजन क्यों होता है ना। जैसे मेटल्स कोरोड होता है, आयरन के ऊपर एक डस्ट एक रेस्ट आ जाता है, आयरन रेस्ट हो जाता है, रेस्टिंग ऑफ आयरन, और उसमें एक आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर। एयर में ऑलरेडी नमी है ना, वाटर इज ऑलरेडी देयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो दैट इज वाई अभी तो आपको पता है बारिश हो रहा है तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर कंटेंट इन द एयर इज मोर, दैट इज मीन्स मोर ह्यूमिड। सो जैसे साउथ इंडिया में होता है 80-85% वाटर कंटेंट होता है, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज है वो 5% होता है व्हेन इट इज वेरी ड्राई। लेकिन अभी उसका परसेंटेज काफी ज्यादा है बिकॉज इट्स रेनिंग। तो वाटर कंटेंट और एयर, ऑक्सीजन प्लस वाटर, सो इसके साथ जब आयन रिएक्ट करते हैं तो इट बिकम्स आयन ऑक्साइड, बट इट इज हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, उसमें वाटर का कंटेंट भी होती है। और ये हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड जो है ये थोड़ा ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस है, वो जल्दी टूट जाता है ना, आयन का पार्टिकल जंग पकड़ते हैं, और वो यही है कोरोशन। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, एक तरह की ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एंड इट बिकम्स आयन ऑक्साइड। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, Fe2O3 बनता है, प्लस सम H2 इज देयर, हाइड्रेटेड है ना, आयन ऑक्साइड। And then I can say about, so for iron, rusting of iron is an example of what? Corrosion. And you know that the black coating of silver जो है पुराने होने पर थोड़ा ब्लैक कोटिंग उसमें आ जाता है, और उसका कारण भी क्या है, ऑक्सीडेशन टाइप एक थिंग है, बट इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ सल्फर, रिएक्शन विद सल्फर। सो जब ये सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो
इट बिकम्स सिल्वर, सिल्वर का जो सल्फाइड बनता है, और उसके सिल्वर सल्फाइड जो है इट इज ए ब्लैक कोटिंग एक्चुअली ओवर सिल्वर. So that is also black coating of silver is due to oxidation reaction only. But यहाँ पे सल्फर ऐड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है. सल्फर ऐड होना भी ऑक्सीडेशन ही है. और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. सो कॉपर में जब ग्रीन कॉपर का वेसल में भी है ना काफी डैम्प एयर में उसको छोड़ेंगे तो कॉपर भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इट बिकम्स कॉपर कार्बोनेट, है ना. और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, कॉपर कार्बोनेट भी है, लेकिन कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर, मेनली इट्स कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट की वजह से इसका ग्रीन कोटिंग होती है. सो इट्स मेनली रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो है, सो इट बिकम्स कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड तो मैंने कहा OH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस एंड CO3 कॉपर कार्बोनेट. So the greenish coating on copper is due to reaction with carbon dioxide. And then aluminium एक fresh aluminium का बर्तन जो है वो बार बार यूज करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो थोड़ा इसका शाइन जो है वो चला जाता है, डल हो जाती है. And that is due to aluminium oxide, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है. लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके लिए कोई कोरोड नहीं कर रहा, उसको खराब नहीं कर रहा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उससे क्या है कि वो मेटल और स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसके अंदर का जो मेटल है उसको बचाएगा बाहर का एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का जो लेयर है. Al2O3 का लेयर एल्यूमिनियम से भी बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम को एक तरह की प्रोटेक्शन देगा. तो यहां पर ऑक्सीडेशन एक उसके लिए एक बून है, मतलब एक फायदा है. लेकिन बाकी सब जगह ऑक्सीडेशन फायदा नहीं है, ऑक्सीडेशन एक नुकसान है. So that's all about the corrosion. So because we don't want to go in detail about corrosion as it is not in the syllabus this year. लेकिन इस चैप्टर में जो corrosion का टॉपिक है वो नहीं है करके मेंशन नहीं है. So वैसे भी इस चैप्टर में डिटेल में नहीं है corrosion. Okay, let's talk about the second thing. So the second effect of oxidation is rancidity. What do you mean by rancidity? Especially the food particle. Oil and the fats, I should say oil fats present in the food particle, they get oxidized. और ऑक्सीडाइज होने से फिर उनका टेस्ट बदल जाता है, उनमें स्मेल बदल जाता है ना, अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट हो जाती है, फिर वो खराब हो जाता है वो फूड पार्टिकल या फूड मटेरियल. सो आजकल हम बहुत ज्यादा पैक्ड फूड खाते हैं, तो पैक्ड फूड में भी यही होता है कि मतलब आप फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे और खाएंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन ज्यादा दिन तक रखेंगे, 2 दिन रख दिया, 4 दिन रख दिया, 5 दिन रख दिया, तो इट विल बिकम ऑक्सीडाइज्ड, है ना. और ऑक्सीडाइज होने से फिर उसका टेस्ट, है ना, और उसका स्मेल चेंज हो जाती है एंड इट्स नॉट एडिबल देन. तो ये रैंसिडिटी जो है इट इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट and oil present in food material, making some unpleasant smell and unpleasant taste. So इसको अगर आपको avoid करना है, so rancidity is a condition produced by oxidation of fats and oil present in food materials causing unpleasant smell and taste. सो इसको अवॉइड करने के लिए या रैंसिडिटी को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टॉप करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा ताकि आप फूड पार्टिकल का शेल्फ लाइफ जो है उसको इंप्रूव कर सके, यानी 4 दिन बाद भी खा सकते हैं ऐसे. सो उसके लिए या तो उसको आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करो ताकि वो उसका जो ऑक्सीडेशन है बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा. और दूसरा आप उसको नाइट्रोजन गैस से फ्लश करा हुआ, नाइट्रोजन गैस या और कोई ऐसा इनर्ट गैस, नाइट्रोजन गैस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता फूड पार्टिकल के साथ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में शामिल नहीं होता, इसीलिए नाइट्रोजन गैस से फ्लश करा हुआ जैसे चिप्स वगैरह है तो वो फूला हुआ रहता है,
है ना। चिप्स का जो पैकेट मार्केट में अवेलेबल है, उसका जो पैकेट है वो फूला हुआ इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्रेश है। और इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज होकर वो खराब नहीं होता है फूड मटेरियल। और तीसरा जो चीज है, इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकता है ना। बाय एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करने पे भी you can preserve food materials from rancidity। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का कुछ एग्जांपल मैं दूं, लाइक जो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, BHA और BHT जो है, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या हाइड्रोक्सीटोलुइन। तो ये सब कुछ ऐसा केमिकल है, एंड आई कैन सिंपली राइट केमिकल। So some chemical you can use which are actually antioxidants और जो फूड पार्टिकल को रैंसिडिटी से बचा सकता है। So this is all about the chapter, and so we have learned 5 types of reactions, and also we learned how to balance chemical equations and how to give more information, how to make a more informative chemical equation, and also we learned about the effects of oxidation like corrosion and rancidity. Okay, so that's all about the video, and the chapter is over. So what you have to do is you have to do the blueprints, and you have to do the questions at the back in a fair copy. So अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें नोट्स के रूप में भी आप जो भी मैंने पढ़ाया वो बोर्ड में लिखा वो सब आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात आपको कंपल्सरी जो लिखने का है वो ये है कि ब्लूप्रिंट्स एंड द क्वेश्चंस एट द बैक, तो उसको आपको करना है और उसको लर्न भी करना है। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।